Jesus Christ. We welcome you. हमने संडे स्कूल में कई नए गीत सीखे और बाइबल की अनेक कहानियाँ सुनी है। We had learned new songs and many Bible stories in the Sunday school. आज हम इन सब का एक छोटा सा भाग आप सबके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। Today we are going to present a small part of it in front of you. और हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा संडे स्कूल प्रोग्राम पसंद आएगा। We hope that you like our Sunday school program. हम कुछ पदों के द्वारा शुरू करते हैं। Let's begin our program with a few verses. मनुष्य के साथ मेल मिलाप से मिलता है 12 का 18। Look unto me and you will be all the ends of the earth. For I am God, there is no one else. Isaiah 45:22. Thank you. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9:6. यहोवा का बैर मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9:10। John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness but have the light of life. John chapter 8 verse 12. आराधना के गीत को आनंद और धन्यवाद के साथ गाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसका प्रेम सनातन है। हम सबके लिए
God, my name is Emma Abhishek. I'm going to tell you to us 1 John 3, 1 to 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we shall be called the sons of God. And therefore the world knoweth us not, because they know him not. Beloved, now are we the sons of God, that we should, and he doeth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall be appear, we shall be like him, and we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Thanks. Today I'm going to read Colossians 3:14-17. Above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony, and let peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members on one body, we are called to live together in peace and always be thankful. Let the message about Christ and all its richness fill your life. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, do it as representative of Lord Jesus, giving thanks to Him, to God the Father. Colossians 3:14-17. Psalms 135, 1, 2 and 3. Praise ye the Lord, praise ye the name of the Lord. Praise Him, O ye servants of the Lord. Ye that stands in the house of the Lord, in the courts of the house of the Lord, praise Him, for it is good. Sing praises unto His name, for it is pleasant. Psalms 135, 1, 2 and 3. हमने इस साल बाइबल से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और आज हम इन कहानियों में से एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप भी देखिए, जानिए कौन सी है। हेलो, जय मसीह की सभी को। मेरे खूबसूरत रंगीन कपड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं कौन हूँ। हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं यूसुफ हूँ, याकूब का बेटा। मैं याकूब हूँ, ये मेरा 12 बच्चे है। मेरा नाम रूबन है, मैं याकूब का पहला पुत्र हूँ। मैं शिवान हूँ, याकूब का दूसरा पुत्र। मैं देवी हूँ, मुझे परमेश्वर की सेवा का विशेष भाग मिला। मैं राजा हूँ, मेरे वक्त से मसीह आया था। मैं जानू, मेरा नाम का अर्थ बताता है। मैं नप्ताली हूँ, तेज और स्वतंत्र यम के समान। मैं गांध हूँ, मेरा नाम सौभाग्यता प्रतीक है। मेरा नाम कौशल है, मेरा नाम की अर्थ आशीष है। मैं सकार हूँ, मैं मेरा क्या नाम सबाब का हूँ। मैं ज़बूलून हूँ, मेरा नाम निवास से जुड़ा है। मैं यूसुफ हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन के कठिनाइयों को भलाई में बदल दिया। मैं ओबीडियन, सबसे छोटा भाई, पिता का दुलारा। याकूब अपने सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ से करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का बेटा था। उसने रंग बिरंगे एक अंगरखा बनवाया, जैसा कि हम यूसुफ को पहने हुए देखते हैं। लेकिन उसके भाई उससे नफरत करते थे और उससे अच्छी तरह बात नहीं करते थे। पिता यूसुफ को अधिक प्रेम क्यों करते हैं? मुझे उससे नफरत है।
देखो, मैंने जो सपना देखा उसमें तुम सबको मेरे सामने झुकते देखा। वह देखो, सपना देखने वाला फिर से। चलो इसे गड्ढे में फेंकते हैं। यूसुफ को उसके भाई ने गुलाम बनने के लिए बेच दिया था। वह मिस्र में पहुंचा, प्रभु यूसुफ के साथ था। मैंने एक अजीब सपना देखा, लेकिन मेरे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसका अर्थ नहीं बता पाया। महाराज, मैं जब जेल में था, वहाँ एक कैदी ने सपने का अर्थ बताया। उसे बुलाऊं क्या? हाँ महाराज, हम उसको बुला देते। ठीक। यह है। मैंने सुना है आप सपनों का अर्थ बता सकते हैं। प्रभु की मदद से मैं आपको बना सकता हूँ। आपके सपने का ये मतलब है कि 7 अच्छे साल आएंगे और उसके बाद 7 साल का अकाल पड़ेगा। अब भी सही तैयारी करो। यूसुफ, तुम तो बुद्धिमान व्यक्ति हो, मैं तुम्हें मिस्र का शासक बनाऊंगा। भाइयों ने यूसुफ के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे गुलामी में बेच दिया। यूसुफ के लिए यह एक लंबा और कठिन सफर था। यह एक अंधेरा गड्ढा था। भाइयों का विश्वासघात, गुलामी की जंजीरें, महल का भयानक प्रलोभन और जेल। लेकिन इस कहानी का अंत कितना अलग था। जैसे कि यूसुफ उत्पत्ति 50 के 20 में कहता है, परंतु तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बुरा करने की युक्ति की, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए ठहराया। इस कहानी के आधार पर हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। He's better than
वचन को अपने हृदय में धारण करने से हमें उसके मार्गों पर चलने में मदद मिलती है। अब हम याद किए पदों को सुनाएंगे। Proverbs chapter 10 verse 11. For the scripture says, whoever believes on him shall not be put to shame. यूहन्ना 20:29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य वे हैं जो जिसमें मैं बिना देखे विश्वास किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति एक है। My help comes from the Lord who made heaven and earth. Psalm 121 verse 2. Oh, worship in the Lord in the beauty of holiness. Psalm 96 verse 9. Psalm 46:1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23:1। नीति वचन 22:4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन मन महिमा और जीवन होता है। यहोवा मेरा बल है। संख्या 28:7। मेरा यतन और मेरा Ask and it will be given to you. Seek and you shall be find. Knock and it will be opened to you. Matthew chapter 7 verse 7. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी लड़ाई में हैं? शायद लोगों के साथ नहीं, बल्कि तनाव, संदेह, प्रलोभन या भय के साथ। बाइबल हमें बताती है कि विश्वासी एक आत्मिक लड़ाई में है, लेकिन अच्छी खबर यह है हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रहने के लिए 6 हथियार दिए हैं, जिसके बारे में इफिसियों में लिखा है। पहला और दूसरा हथियार सत्य का कमरबंद और शांति के सुसमाचार के जूते। आइए देखिए एक सच्चाई एक कुएं के पास आई हुई महिला के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हे नारी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? लेकिन तुम तो एक यहूदी हो और मैं एक सामरी स्त्री, तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? यहूदी सामरी लोगों से संबंध नहीं रखते। जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल का पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह कभी प्यासा न होगा। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ। अब नबी लगते हो, मैं जानती हूँ कि मसीहा आने वाला है। जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इस बात को सुनकर स्त्री ने सत्य का कमरबंद पहना और शांति की सुसमाचार के जूते पहनकर गांव में सच्चाई को बताने के लिए गई। तीसरा हथियार धार्मिकता की झीलम आपके हृदय और छाती की रक्षा करती है। वह हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। बाइबल में एक दंपति अक्विला और प्रिस्किल्ला से मिले। स्वागत है आप सभी को बेरेका मंडली में। आप अपना परिचय दें और आपके बारे में बाइबल में जो लिखा है वह भी बताइए। सभी को जय मसीह। मैं हूँ अकेला, ये मेरी पत्नी प्रिस्किल्ला। हमने अपने घर को प्रभु के काम के लिए खोला था। अच्छा, आप पौलुस की कैसे मदद की आपने? पौलुस कुरिन्थ में हमारे घर रहे। हम उनके साथ सुसमाचार प्रचार में यात्रा करते थे। हम सही बात के लिए खड़े होने में नहीं डरते थे। हम दूसरों को विश्वास में बढ़ने में मदद की। जैसे झिलम हृदय की रक्षा करता है, जैसे झिलम हृदय की रक्षा
लगता है सारे कैदी भाग गए हैं। बेहतर हुआ कि मैं खुद को मार डालूं। रुक जाओ। हम सब यहाँ है। भाग गए हैं। उन्हें बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। क्या आप विश्वास अपने परिवार के साथ बिताओगे? जरूर। मेरे परिवार ने भी विश्वास किया। हमने उधार का तो पहन लिया, बपतिस्मा भी लेंगे। पांचवा हथियार विश्वास की ढाल। ढाल परमेश्वर पर विश्वास का प्रतीक है जो संदेह, भय, प्रलोभन पर जय पाने में मदद करता है। देखें बाराक और देबोरों के जीवन में क्या हुआ। बाराक, मुझे प्रभु से अगुवाई मिली है कि तुम्हें कनानी सेनापति सिसरा के खिलाफ इस्राएल की सेना को ले चलना है। क्या? ये तो डरावना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं भी चलूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन महिमा एक स्त्री को ही मिलेगी। कोई नहीं, मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है, वह हमें बचाएगा। आओ चले। पकड़ो शीर्षा को। कहाँ चला गया? इधर आओ। तीसरा यहाँ छुपने के लिए आया। मैंने डेरे की खूंटी से मार दिया। विश्वास की धार ने मेरे संदेह और भय को दूर कर दिया। छठवां और आखिरी हथियार आत्मा की तलवार। तलवार परमेश्वर का वचन है जो यीशु है। यीशु के जीवन में एक घटना को दिखाता है। मैं इस पहाड़ में 40 दिन रह लिया। अब मुझे भूख लगी है। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कहो कि वह रोटी बन जाए। ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अच्छा, अपने आप को यहाँ से नीचे डाल दो, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, जिससे तेरे पाँव किसी पत्थर से ना टकराए। यह भी तो लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ना परखो। अच्छा, ये सर्वस्व मैं तुझे दे दूंगा यदि तुम मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। हट जाओ शैतान, दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की सेवा और आराधना किया करो। अरे नहीं, ये व्यक्ति भूख या शक्ति से प्रेरित नहीं है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। यीशु ने शत्रु को शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचन से युद्ध किया। प्रभु हम सभी को आत्मिक युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग करने में मदद करे ताकि हम विजय जी सके। परमेश्वर के हथियार के आधार पर हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हथियार
14. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness of this world, and wherefore take all the armor of God, that ye may be able to withstand the evil day, having all done to stand. Therefore, take having the lion's girt about with truth and a breastplate of righteousness. Ephesians 6:20-14. Thank you. Ephesians 6:15-18. And having shod your feet with the preparation of gospel of peace, above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. 6:15-18. Giving thanks to the Father. Colossians chapter 1 verse 12-14. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, who has delivered us from the power of darkness and converted us into the kingdom of His love, in whom we have the redemption through His blood, the forgiveness of sins. Colossians chapter 1 verse 12-14. फिलिप्पियों 4:4-7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:4-7। यूसुफ के जीवन में बहुत से दुख देखे, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए ठहराया। ऐसे समय के लिए अंतिम हथियार भी दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। Let's hear a few more verses. Psalm 125. They that trust in Lord shall be as Mount Zion, which cannot be moved of it forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even forever. As the rod of wheat shall not rest upon the rod of the righteous shall put forth their hands unto equality. Do good, O Lord, unto this that be good, and to them that are upright in their hearts.
As persons as turned aside unto their good ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Praise the Lord. Psalm 119, 89 to 96. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue the state according to thine ordinances, for all are thy servants. Unless thy law had been my delight, I should have then perished in mine affliction. I have sought thy precepts, for with them thou hast quickened me. I will never forget. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider thy testimonies. I have seen an end of all perfection, but thy commandments are exceeding broad. Psalms 190, 89 to 96. प्रकाशित वाक्य 1:5 से 8। यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जीतने वालों में पहलौता और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा अब प्रकरमा युगायुग रहे। आमीन। वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, परंतु जिन्होंने उसे भेजा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो आने वाला है और जो था, यह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:5 से 8। क्रिसमस का समय आ गया है। आइए हम सब मिलकर गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को दुनिया में भेजा ताकि हम अपने पापों की माफी प्राप्त कर उद्धार पा सकें।
ओके, थैंक यू। हम सब माँ बाप को धन्यवाद देते हैं मेहनत करने के लिए, बच्चों को संडे स्कूल लाने के लिए। और बहुत दूर दूर से माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। मैं जब देख रहा था परफॉर्मेंस को, माँ बाप की नज़र अपने बच्चे के ऊपर थी। सब माँ बाप की नज़र अपने बच्चों के ऊपर रहती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा परमेश्वर ने एक सुंदर एक प्रेम दिया है कि हमारा अपने बच्चे के प्रति बहुत चिंता है। बहुत अच्छा लगता है जब वो सामने आते हैं, खड़े होते हैं, बोलते हैं। यदि कुछ गड़बड़ी करते हैं तब भी जब माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा किया। हमारा प्रभु भी हम सबको देखता है, पर हमारा प्रभु हम सबको बराबर दृष्टि से देखता है, पक्षपात नहीं करता। हम चाहे गिरते हों, चाहे उठते हों, चाहे फिसलते हों, चाहे उसके साथ हम ठीक ठाक से नहीं भी चल रहे हों, परमेश्वर सबको उतने ही बराबर नजर से देखता है, क्योंकि हम सबके सब उसके बच्चे हैं।